Hello. See the topic mole concept. Say is a unit to represent amount of substance. Hence, it is a unit to quantify any matter. किसी मैटर को क्वांटिफाई करने के लिए के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मोल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जैसे when we talk about 1 dozen, so 1 dozen means 12. Similarly, 1 score is equal to 20. Say that 1 gross is this is equal to 44. Similarly, when a chemist talk about 1 mole in terms of particles, so this expresses amount 6.02 to 10 to power 20 particles or entities. Particles may be atoms, molecules, particles may be atoms, molecules, ions, electrons, or any elementary entity. Right? So this number is known as Avogadro's number. Right? So when we have an element, अगर हमारे पास एलिमेंट की स्टडी हम लोग कर रहे हैं, अगर मैटर की जगह मैटर में हमें पास एलिमेंट्स है, the fundamental particle of element is atoms. So when we can say that 1 mole means it has 6.022 into 10.23 atoms in the element. In case of compounds, this is equal to Avogadro's number of molecules. Similarly, in case of compounds, if we have ionic compounds, then this is equal to this amount of ions. Similarly, we can also calculate this amount of electrons, this number of protons, this number of electrons. So in terms of particles, 1 mole is equal to 6.023 into 10 particles. Particles with atoms. In case of elements, in case of compounds, it is equal to molecules. In case of ionic compounds, it is equal to ions. Similarly, we can also calculate different elementary entities, protons, etc. And this amount is exactly equal to the number of carbon atoms present in 12 gram of 12 isotope. Right? तो ये वो वैल्यू है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वान्टिफाई करते हैं, अमाउंट एक्सप्रेस करते हैं. और अगर हम पार्टिकल टर्म्स में बात करें तो ये अमाउंट हमारी होती है इस वक्त 6.022 पार्टिकल्स, यानी जिसको हम लोग Avogadro's number. Now, if we have number of particles, अगर हमारे पास number of particles है, and when we divide this number of particles by Na, that is the Avogadro's number, so we get the number of moles. अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और अगर हमें उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इंफॉर्मेशन है तो हम उसके Avogadro's नंबर से डिवाइड करके उसके निकाल सकते हैं. Similarly, you can find out the number of particles in any substance if we have the information of number of moles, so multiplied by Na, that is the Avogadro's number, so we get the number of particles substance. The conversion factor, ये आपको हेल्प करेगा conversion. So if we have the information of number of moles, अगर हमारे पास number of moles है, अगर हम उसको Avogadro's number से multiply कर दें, so get the number of particles. Similarly, if we have the information of number of particles of particular substance divided by Avogadro's number, this will give you the number of moles in that particular substance. Right? Here, this is the mole in terms of particles. Now, when we express number of moles in terms of mass, फिर हमारे पास कोई ऐसा solid substance है, मान लीजिए एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, which exist in solid form. तो अगर हमें मोल्स को मास टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम उसको कहेंगे क्या, द मास ऑफ 1 mole of any element or mass of this number of atoms of any element is equal to gram atomic mass, or which is also known as molar mass of 1 mole of any element. तो 1 mole अगर मास टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये किसी भी एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, and gram atomic mass is actually the mass of Avogadro's number of atoms of any element. Similarly, mass of 6.022 into 10.3 molecules, that is 1 mole of any compound, this is equal to gram molecular mass or gram formula mass, collectively known as molar mass of any compound. Similarly, अगर हमारे पास कंपाउंड है तो हम कहेंगे क्या, उसमें 1 mole of compound, mass of 1 mole of compound is gram molecular mass, या अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है तो हम बोलेंगे ग्राम फॉर्मूला मास. So gram molecular mass or gram formula mass is actually the mass of 1 mole of particular compound. उस compound के 1 mole of molecules का mass है, तो हम लोग कहते हैं क्या, molar mass, gram molecular mass, gram formula mass. Right? So again, if we have the information of mass of any substance, अगर हमारे पास किसी भी substance का mass है, so divided by its molar mass, get here the number of moles. Similarly, if we have the information of moles, अगर हमारे पास moles का information है
अगर हम उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा मास ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस। तो इनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, मोल्स निकाल सकते हैं। अब अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, उसके मास को उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो उसमें मोल्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है हम उस पर जो भी गिवन मास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास मैटर क्या है, तो आप उस हिसाब से अपने मोलर मास को यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस, अगर ये सब्सटेंस हमारा एलिमेंट है, नंबर ऑफ मोल्स का इन्फॉर्मेशन है कि हम ग्राम क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप तो सब्सटेंस निकल आएगा। अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑफ दैट पार्टिकुलर कंपाउंड। दिस इज द कन्वर्जन, दिस विल अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है उसको मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपके पास है, एलिमेंट है तो ग्राम एटॉमिक मास होगा, अगर कंपाउंड होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सब्सटेंस का मास मिल जाएगा, और अगर आपके पास मास का इन्फॉर्मेशन है तो डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, दिस मोल्स, राइट। सो दिस इज moles in terms of mass, right? Now say if we have any matter which exists in the liquid or the gaseous form, so in such cases, okay, say volume of 1 mole of any gas at STP 2.4 liter, and this is known as mole volume. Okay, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम ये 22.4 लीटर होता है एसटीपी पे, और इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम, राइट। सो इफ वी हैव V volume of any gas at STP, so divided by 22.4 liter, this number of moles। अगर हमारे पास किसी भी गैसेस सब्सटेंस का मोल वॉल्यूम गिवन है तो अगर हम उसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और सिमिलरली हम यहाँ से उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिस बिकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 20.4 लीटर। तो हम यहाँ से वॉल्यूम का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोल्स का इन्फॉर्मेशन है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ये मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। इसकी वजह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं आसानी से। You have information of number of moles of any gas at STP. So multiply it by 22.4 liter, that is mole volume, will give you the volume of that particular gaseous substance at STP. Similarly, अगर आपके पास वॉल्यूम का इन्फॉर्मेशन है so divided by 22.4 liter, this will give you the number of moles of that particular gas, right? ये पूरा देखिए कंप्लीट, ये हमारा तीनों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ, ये देखिए पूरा कंप्लीट कन्वर्जन। देखिए वॉल्यूम का कन्वर्जन कैसे हम लोग नंबर ऑफ करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का कन्वर्जन। Similarly, if we have the number of particles, so divided by multiplied by Na, this will give the moles, or number of moles when it is divided by Pareto's number, this will give particles. Similarly, if we have the mass of substance, so multiplied by molar mass, this will give moles, and when number of moles are divided by molar mass, this will give substance. Similarly, when the volume at STP, when it is divided by 22.4 liter, this will give the number of moles. And similarly, number of moles when they are multiplied by 22.4 liter, that is molar volume, this volume at STP, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सारे कन्वर्जन्स करके मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है सकते हैं। देखिए यहाँ से कुछ फॉर्मूले हमारे निकल पाएंगे। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम एट एस टी पी, तो वैन वॉल्यूम एट एस टी पी टी वैन इट इज डिवाइडेड बाई 2.4 लीटर, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, अगर ये हम देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे आना चाहेंगे तो क्या देगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, इफ़ वी हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, और आपसे अगर उसका मास पूछा जा रहा है तो आप आसानी से फॉर्मूले से उसका कन्वर्जन। तो दिस इज टू स्टेप कन्वर्जन, यानी यहाँ से अगर वॉल्यूम से अगर हमें मास कैलकुलेशन करना है, या मास से अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेशन करना है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें वॉल्यूम का कैलकुलेशन करना है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मास का कैलकुलेशन करना है, इन सारे इस पूरे फ्लो चार्ट से हम आसानी से सारे कैलकुलेशन, तो लगभग इसी फॉर्मूले पे हमारे सारे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसको आप लर्न कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा आपके मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये समझ में आई है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सी हियर वी हैव द नंबर ऑफ मोल्स, here we have to calculate the number of moles and molecules in 115 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम एक हमारा यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ है, और इसके 115 ग्राम में हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ को निकालना है। सो द नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, गिवन मास इज 150,
एंड उसके हम क्या करेंगे, उसके ग्राम एटॉमिक मास यानी मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सो इट इज 23, सो दिस गिव्स यू 5 मोल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है तो अगर हम उसके एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो गिव यू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हियर वी हैव 5 Na मॉलिक्यूल्स, यानी 5 into 6.022 into 10^23 मॉलिक्यूल्स हो, सॉरी एटम्स हो गए सोडियम के। सेकंड सी है, calculate the number of moles molecules and atoms in 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 440 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है और एटम्स भी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन है हमारा 440, और इसका जो ग्राम मॉलिकुलर मास होगा अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये निकल आएगा क्या, इसका नंबर ऑफ मोल्स ही आ गया 10। राइट, अब हम इसमें मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ये हमें दे देगा क्या, 10 Na। राइट, अब हम देखेंगे क्या कि ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हम देखेंगे इसमें कितने एटम्स हैं। पहले हम एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। हमें दिख रहा है एक कार्बन का एटम है और प्लस दो हमें दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन का एटम, यानी टोटल एटम्स हमें दिख रहा है 3। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स, ये हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स 30 Na, तो नंबर ऑफ एटम्स में। राइट, तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो आपके बहुत एक बेसिक क्वेश्चंस थे। आप इन्हीं चीज़ों को आपको जो है अप्लाई करते हुए जो स्टोकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने होते हैं, यानी कि जो रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन पहले उसके पहले आपको ये सारी चीज़ों को करनी होगी। नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम कार्बोनेट को निकालने के लिए पहले आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। गिवन मास इज 200 और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा क्या, दिस इज 100। 100, so this is the number of moles। इसमें हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है। अब पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, लेकिन ये कंपाउंड है तो पहले हम इसके मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मोल्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कर देंगे, ये हमारा मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं। तो एक कैल्शियम का एटम और एक कार्बन का एटम दिख रहा है और प्लस हमें 3 यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम्स दिख रहा है, यानी कि टोटल 5 एटम्स है एक कैल्शियम कार्बोनेट। एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने एटम्स हैं, हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 10 Na हो जाएगा। राइट, राइट, ठीक है से क्या देखिए, अगर हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O, वाटर के अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। सबसे पहले हम देखेंगे क्या है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा हमारा 36, मोलर मास इज 2, राइट, यानी इतने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हम नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 2Na। अब हम देखते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो हाइड्रोजन में अगर आप देखेंगे एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के अंदर देखेंगे क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे तो इट बिकम्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, 2Na। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज 20 Na इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। राइट, तो इस तरीके से चीज़ें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, अगला देखिए, देखिए टोटल चार्जेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम आयन। एल्युमिनियम आयन के अंदर आपको टोटल चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालने। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम आयंस का पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 54 और इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 27। राइट, ये हमारे पास 2 मोल्स। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर पहले हमें एल्युमिनियम के कितने एटम्स हमें मिल जाते हैं। एल्युमिनियम के टोटल एटम्स कितने मिल जाएंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एटोमिक नंबर से, तो ये टोटल एटम्स यानी टोटल एल्युमिनियम के आयंस हमें मिल चुके हैं 2Na। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो एल्युमिनियम आयन के अंदर अगर हम लोग देखेंगे ये 3+ चार्ज है, यानी कि एक एल्युमिनियम आयन के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास टोटल एल्युमिनियम कितने इतने हैं। इसका मतलब है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे क्या, 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। राइट, अब हम देखते हैं इसमें चार्जेस कितने होंगे। तो चार्जेस निकालते समय अगर हम देखेंगे तो एल्युमिनियम के ऊपर 3+ का चार्ज है, यानी इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो 3 प्रोटॉन का चार्ज हमें दिख रहा है।
तो 3 प्रोटॉन का चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ मतलब ये हो जाएगा हमारे पास उसका 3 प्रोटॉन का चार्ज, यानी हम कह सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज कह सकते हैं। अब हमारे पास कितने एटम्स हैं? टोटल हमारे पास एटम्स हैं, राइट? और हमारे पास एक एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्रोटॉन का चार्ज है और टोटल एटम्स हमारे पास इतना है, कहेंगे क्या? इट इज 3 इंटू 2 इंटू Na को हम पूरा लिख लेते हैं 6.023 10⁻20 इंटू 1.6 टू 10⁻⁹ मतलब अब ये पूरी जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रही है अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम पर मोल, एंड दिस इज 1 फैराडे, राइट? हम कहेंगे क्या? दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे। इस तरीके से हमारे पास टोटल अगर हम चार्ज देखें फैराडे, राइट? So this is the number of charges, total number of charges and number of electrons in 54 gram of iron. इस तरीके से आप आसानी से कुछ भी चीज़ें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहे तो नाउ वी हैव नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑक्सीजन एट एसटीपी। देखिए ये वॉल्यूम गिवन है O2 का, और तो आप आसानी से इसके नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। में मिल गया एसटीपी, इसका नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 600 ग्राम ऑफ H2 एट एसटीपी का वॉल्यूम पूछ रही है। पहले हम क्या करेंगे, में इसका मास है, इसमें हम इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई 2, राइट? ये हो जाएगा 300। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है, अगर हम इसका वॉल्यूम पूछ रहा है एसटीपी, तो हम क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा इसका मोलर, इसका हो जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी, राइट? तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 448 ml ऑफ CO2। अब 448 ml ऑफ CO2 आपके पास है, यानी कि वॉल्यूम गिवन है ml में, तो आप आसानी से क्या करेंगे, इसको मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मोलर वॉल्यूम ये लीटर में था, मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से आपको मोल मिल चुका। अब आप क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे यानी तो, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ चुका है। हम मास निकालेंगे, तो मास निकालना आसान है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ये हमारा आ चुका है दिस वाली, नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या करेंगे, अगर आप उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, या मास इसका है 44, तो आसानी से आपका क्या निकल आएगा, मास मिल जाएगा। तो वो सारे जो आपका फ्लो चार्ट है, उस पर सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आपके पास क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास वेट ऑफ 40 एटम्स ऑफ एल्यूमिनेट 400 AMU, नंबर ऑफ एटम्स इन 250 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट, ये पूछा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है कि जब हम किसी को, यानी एक किसी एलिमेंट के एक एटम का मास, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का एम्यू एक्सप्रेस, राइट? ये कह रहा है कि 40 एटम्स का मास ये दिया हुआ है 400 AMU, राइट? तो हमारे पास एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 100 अपॉन 40, 10 AMU। ये क्या दिखा रहा है हमें, ये एक एटम का मास दिखा, राइट? इसका मतलब क्या है, अगर इसको ग्राम टर्म में एक्सप्रेस करें तो 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आपसे ये पूछ रहा है कि 250 ग्राम, या नंबर ऑफ एटम्स है 250 ग्राम, सी है। 250 ग्राम को हम क्या करेंगे, इसके मोलर वॉल्यूम से, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। इसका मोलर मास कितना था, इसका मोलर मास अभी आपने निकाला, ये जो आपने निकाला ये एक्चुअली क्या है, ये था क्या, ये एक एटम का मास है। तो अगर हम इसके एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का मास निकालेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 10 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻, इंटू एवोगाड्रोस नंबर है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स का मास, यानी 1 मोल ऑफ एटम्स का मास ही कहलाता है क्या, का मोलर मास। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये अगर हम देखेंगे, दिस वैल्यू इज एट इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम, तो इज Na कैंसिल ऑफ हो जाएगा हमारा, तो मतलब ये सीधे सीधे कितना होगा? तो इसका हमें क्या हो जाएगा, इसका ग्राम एटॉमिक मास मिल चुका है, मोलर मास। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, हमारा आ जाएगा मास निकल,
ये पूछ रहा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पूछ रहा है क्या, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स का मास पूछ रहा है। देखिए हमारे पास क्या है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 केजी। आपसे पूछ रहा है मास ऑफ 6.02 टेन टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का मास पूछ रहा है। 9.1 10 पावर -31 6.023 टेन टू पावर, क्या आ जाएगा केजी, राइट। इसी तरीके से ये पूछ रहा है मोल्स ऑफ प्रोटॉन वेइंग 200 ग्राम, 200 ग्राम में कितने मोल्स होंगे प्रोटॉन्स में। जी इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पता है कि मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ वन प्रोटॉन हमारा क्या हो जाता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम। गति नहीं है। आपसे पूछ रहा है क्या, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, 9.1 to 10 power plus 27 into 6.023 into 10 power, ये यानी एवोगैड्रोस नंबर आपका हो गया वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आ रही है दिस मास इज एक्चुअली तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है, मोल है आपसे कि कितने ग्राम का, ये 1 मोल के बराबर है, 200 ग्राम कितने, इजी, तो आप आसानी से समझ, राइट। नेक्स्ट इज, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको कंपटीशन लेवल पे दिख रहे हैं, इजी है तो सॉल्व कीजिए। 2019 को कह रहा है कि 5 मोल्स ऑफ AB2 weight 125 into 10⁻³ kg and 10 moles of A2. Molar volume of A MA, molar volume of B जिसको MB लिया गया, kg पर मोल पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने A का कह रहा है कि मोलर वॉल्यूम है MA और B का कह रहा है क्या, पहले अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास कंपाउंड है AB2 का पूरा मोलर मास कितना हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, यानी ए का क्या है जिस MA और प्लस क्या है 2 हो जाएगा, ये मास इसका हो गया मोलर मास, राइट। और इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, E2 का मास कितना हो जाएगा क्या, 2Ma प्लस इसका टोटल मास ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है इसका 5 मोल्स दिया हुआ है, वो पता है क्या, और मास निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। मोलर मास ऑफ इतना, 5 मोल्स ऑफ इतना, 10 मोल्स ऑफ इतना, वेट इतना, मोलर वॉल्यूम ऑफ ए, मोलर वॉल्यूम ऑफ बी, इनकी तो वॉल्यूम दोनों का पूछ रहे, मोलर मास, राइट। मोलर मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, राइट। यहाँ से आपको क्या निकला है, मास निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स इनटू निकाल सकते हैं, एक मोलर मास आपको निकालना है यानी एम ए और एम बी। तो मास यहाँ पे क्या हुआ, गिवन है, मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मास इसका दिया हुआ है पहले वाले का, दिया हुआ 125 10⁻³ राइट, एंड इक्वल टू इसका मोल्स दिया हुआ कितना 5 और इसका मोलर मास क्या हुआ 10 MB। सिमिलरली दूसरे वाले में, ये हमारा पहला केस हो, दूसरे केस में A2B2 के लिए देखिए क्या मास दिया हुआ कितना 300 इंटू 10⁻³ राइट, इक्वल टू मोल्स दिया हुआ है 10 और इसका मास क्या है हमारे पास 2 Ma प्लस इक्वेशन। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा क्या हमारा 5 दिस इज Ma प्लस MB राइट, 4 10 दोनों का मास को इक्वेट कर दें 25 और 100 इंटू
तो सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व फॉर एम ए एंड एम बी, एम ए और एम बी के लिए करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻², इस तरीके के साथ। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ ए पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज, ये मासेस का रेशियो दिया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो। आपको पता है कि यहाँ पे मासेस का रेशियो दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है, ये होता है मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ अपॉन मोलर ऑफ O2। सिमिलरली ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मास ऑफ N2 अपॉन मास ऑफ, मास क्या हुआ है, मास का रेशियो दिया हुआ क्या है 1:4, राइट। इंटू क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ N2 ऑफ O2, ठीक है। और मोलर रेशियो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से इसकी निकाल सकते हैं क्या, यानी ये वैल्यू मास इसकी 1/4 और मास N2 को 8, तो कितना क्या निकल आएगा आपको रेशियो, राइट। तो ये देखिए यही 2014 का क्वेश्चन है। सिमिलरली ये देखिए एक पीएमटी का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किसमें मैक्सिमम दिख रहा है। देखिए पहला केस देखिए आपको, पहला केस दिख रहा है हमें, 18 ml वाटर देख, 18 ml वाटर का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम इसका मोल्स निकालें, 18 ml का मतलब क्या हुआ, ये नहीं एसटीपी कंडीशन पे नहीं है, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इसका निकालेंगे कि मास निकालें। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर मोल ml, ये होती है क्या 18 ग्राम आ जाएगा इसका। अब 18 ग्राम को हम क्या करेंगे, जब मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या 1 मोल, पहला केस ये। अब 0.18 है हमारे पास, 0.18 ग्राम, तो मास गिवन है, तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो मोल्स आ जाएगा। और ये हमारे पास ऑलरेडी मोल्स दिया हुआ है, तो अगर हम चेक करेंगे तो हमें सबसे कम मोल्स किसका दिख रहा है, दिख रहा है मैक्सिमम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम किस में होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा इसके दिख रहे हैं। मतलब क्या है कि इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम हमें इसका, राइट। ये है मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको, जो इसका जो मेन एप्लीकेशन है यानी कि स्टोकियोमेट्री यानी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अप्लाई कर, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस स्मॉल कॉन्सेप्ट पे आप मास्टर कीजिए, के बाद फिर आप बड़े जो कॉन्सेप्ट यानी स्टोकियोमेट्री में इसका एप्लीकेशन पार्ट आपको फिर आसान हो जाएगा आपके लिए।